Recently, Union government notified Digital Personal Data Protection Rules 2025. In this article, we will discuss about Digital Personal Data Protection Act 2023, and we will also discuss about Digital Personal Data Protection Rules 2025. What are Digital Personal Data Protection Rules? Why in news? The Union government notified the rules of Digital Personal Data Protection Act 2023, a law to protect the digital privacy of Indian citizens. Recently, यूनियन गवर्नमेंट ने डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 से रिलेटेड रूल्स को नोटिफाई किया है। डीपीडीपी एक्ट जो कि इंडियन सिटीजन की डाटा प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक इम्पोर्टेंट लॉ है। द डीपीडीपी रूल्स 2025 आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट स्टेप टू कंप्लायंस विद द सुप्रीम कोर्ट 2017 केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट अफर्मिंग द राइट टू प्राइवेसी। It provides basic rights such as access to and erasure of data, place some obligations on companies, and establish a compliance body for the grievance redress. That amendment is in force from November 14, 2025. ये सभी अमेंडमेंट नवंबर 14 से स्टार्ट हो चुके हैं। What is Digital Personal Data Protection Act 2023? Passed in 2023. Draft Digital Personal Data Protection Rules 2025 released on January 3, 2025. DPDP Act 2023 regulate the processing of digital personal data to protect individuals' rights and also allowing for lawful data processing. DPDP Act 2023 इंडियन सिटीजन के डिजिटल पर्सनल डाटा के प्रोसेसिंग से रिलेटेड रेगुलेशंस को इंश्योर करता है। सेट ऑब्लिगेशंस फॉर डाटा फ्यूडिशरी entities like social media platform and government department that handle data, introduce penalties for violations to ensure compliance। कंप्लायंस को इंश्योर करने के लिए डीपीडीपी एक्ट 2023 के अंदर कोई भी पर्सन अगर वायलेशन करता है तो इसके लिए कुछ पेनल्टीज इस एक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस की गई हैं। Core principles of DPDP Act 2023. Number one, consent is important. Personal data must be used in a lawful, consented, and transparent manner. Number two, data minimization. Only necessary data for the specified purpose is to be collected. Number three, accuracy. Ensure the data collected is up to date and accurate. Number four, storage limitation. Data should not be kept longer than necessary. Number five, purpose limitation. Data can only be used for the purpose as stated at the time of collection. Number six, security. Adequate measures must be taken to protect the user's data. Number seven, accountability. Entities must be accountable for their data practices. Penalties are provisioned for breaches and non-compliance of rules. A data protection officer has to be appointed by the large firms who will oversee compliance. Rights for individuals. डीपीडीपी एक्ट 2023 के अंदर इंडिविजुअल्स के लिए क्या क्या राइट्स का प्रोविजन किया गया है। राइट टू एक्सेस। इंडिविजुअल्स कैन फाइंड आउट अबाउट व्हाट पर्सनल डाटा इज प्रोसेस्ड। करेक्शन एंड इरेजर। इंडिविजुअल्स कैन डिलीट और करेक्ट दियर डाटा। ग्रीवेंस रिड्रेसल बॉडी, अ बॉडी टू इंडिविजुअल्स टू रेज कंसर्न एंड कंप्लेंट्स। Nomination. Users can nominate someone to exercise their right in case of incapacity or death. Obligations for data fiduciaries. डीपीडीपी एक्ट 2023 के अंदर fiduciaries के लिए क्या क्या ऑब्लिगेशंस सेट किए गए हैं। नंबर में सिक्योरिटी। इम्प्लीमेंट सेफ गार्ड अगेंस्ट डाटा ब्रीचेज ऑफ यूजर्स। नंबर टू, डाटा इरेजर। डिलीट डाटा when consent withdrawal or no longer needed. Number three, notification. Inform the affected individuals or board about data breaches. Number four, grievance redressal. Establish a system to address individuals' queries and complaints. Important issues related to DPDP Act 2023. DPDP Act 2023 से related important issues क्या क्या है। Number one, curtail journalistic free speech. Typically, data protection law exempt journalistic activities from privacy obligations such as notifying users and taking their consent before using their personal data. But this law curtailed journalistic free speech. Number two, weakens the RTI Act 2005.
DPDP Act 2023 weakens the RTI Act 2005 by removing the obligation of government bodies to provide personal information if the public interest outweigh the public officials' right to privacy. How DPDP Amendment Act contradict with the RTI Act 2005? डीपीडीपी एक्ट डीपीडीपी अमेंडमेंट एक्ट किस तरह से आरटीआई एक्ट 2005 के साथ कॉन्ट्रोडिक्ट नेचर क्रिएट करता है? द डीपीडीपी 2023 एक्ट amended section 81J of the RTI Act 2005, which allows citizens to request public information from government bodies. डीपीडीपी एक्ट 2023 ने आरटीआई एक्ट 2005 के सेक्शन 81J के अंदर कुछ अमेंडमेंट किए हैं। सेक्शन 81J ऑफ आरटीआई 2005 जो कि सिटीजन्स को पब्लिक इंफॉर्मेशन सीक करने के लिए अलाउ करता है किसी भी गवर्नमेंट बॉडी से। गवर्नमेंट बॉडीज कैन रिफ्यूज रिक्वेस्ट फॉर पर्सनल इंफॉर्मेशन बट दिस एग्जम्पशन वुड नॉट अप्लाई इफ देयर वाज अ लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट इन डिस्क्लोजिंग द इंफॉर्मेशन। गवर्नमेंट बॉडी चाहे तो पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए की गई रिक्वेस्ट को रिफ्यूज कर सकता है, बट यहाँ पर एक एग्जम्पशन गिवन किया गया है कि अगर पर्सनल इंफॉर्मेशन पब्लिक लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट अगर रखता है तो इस तरह की इंफॉर्मेशन को गवर्नमेंट बॉडीज को डिस्क्लोज करना ही होगा। द डीपीडीपी एक्ट रिमूव दिस प्रोविजन। डीपीडीपी एक्ट 2023 के अंदर अब इस प्रोविजन को रिमूव कर दिया गया है। इट मीन्स पब्लिक गवर्नमेंट बॉडीज चाहे तो अब पब्लिक इंटरेस्ट रखने वाले पर्सनल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं कर सकते। The previous form of the amendment allow for public authorities to disclose personal information such as copies of ledger of subsidy beneficiaries if there was a larger public interest justifying their release. Previous form of amendment जो था इसके अंदर पब्लिक ऑथोरिटीज को अलाउ किया गया था कि वो पर्सनल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर सकते हैं सच एज सब्सिडी बेनिफिशरीज से रिलेटेड डाटा वो डिस्क्लोज कर सकते थे और इस तरह के जो डाटा होते हैं वो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट रखते हैं। बट द न्यू अमेंडमेंट इफेक्टिवली प्रोहिबिट द डिस्क्लोजर ऑफ एनी पर्सनल इंफॉर्मेशन। न्यू अमेंडमेंट के अंदर किसी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन के डिस्क्लोजर को यहाँ पर अब प्रोहिबिट कर दिया गया है। हाउ डीपीडीपी एक्ट प्राइवेसी रूल अफेक्ट जर्नलिस्टिक फ्री स्पीच राइट। डीपीडीपी एक्ट प्राइवेसी ने किस तरह से इसके अंदर जो प्राइवेसी रूल्स हैं इन रूल्स ने किस तरह से जर्नलिस्टिक फ्री स्पीच के राइट को अफेक्ट किया है। लेट्स वी विल अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जांपल। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। इमेजिन दैट यू आर अ जर्नलिस्ट राइटिंग अबाउट एन एमपी एंड हिज परफॉर्मेंस। फॉर योर स्टोरी you use information from their lives such as a meeting they held, where and with whom, the towns, villages and cities they traveled to, how often did they use a private jet or a chartered plane, what about their financial background and also the investment made by their close family members। इन सभी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन चाहिए अगर आप जर्नलिस्टिक हो। इस पर्सनल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए आपको कुछ एफर्ट्स करने होंगे। मोस्ट ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन एंड नीड्स अ लॉट ऑफ रिसर्च। ऑल दिस इंफॉर्मेशन अबाउट एन एमपी इज देयर पर्सनल डाटा विच इज डाटा प्रोटेक्टेड अंडर द डीपीडीपी एक्ट। किसी भी एमपी के बारे में अगर ये इंफॉर्मेशन कोई जर्नलिस्ट कलेक्ट करता है, ये सारा जो इंफॉर्मेशन है उसका पर्सनल डाटा हो जाता है और अब इस डाटा को डीपीडीपी एक्ट 2023 के अंदर प्रोटेक्ट किया गया है। Consequently, any journalist who wish to use this data will have to get their consent before publishing the story। किसी भी जर्नलिस्ट को अब इस तरह के डाटा को पब्लिश करने के लिए या यूज करने के लिए अब पर्टिकुलर एमपी से यहाँ पर कंसेंट टेकिंग कराना होगा। इट मीन्स यहाँ पर जर्नलिस्ट का जो फ्री स्पीच का राइट उन्हें मिला हुआ था, डाटा कलेक्ट करने का जो राइट मिला हुआ था, अब किसी भी डाटा के प्रोसेसिंग के लिए या फिर किसी भी डाटा को गेट करने के लिए पहले किसी पर्टिकुलर पर्सन की यहाँ पर कंसेंट टेकिंग करना होगा।
Even after publication, the MP can exercise their right to erasure and request journalist to delete such story. जर्नलिस्ट के द्वारा अगर डाटा पब्लिश कर दिया जाता है, पब्लिश करने के बाद भी एमपी चाहे तो इस डाटा को इरेज करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है, बिकॉज़ यहाँ पर इरेज़र का राइट अब गिवन किया जा चुका है और इसके लिए जर्नलिस्ट से वो रिक्वेस्ट करेगा और डाटा को डिलीट करा सकता है।